ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨੀਰਾ ਵੋਰਾ। ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। तो खर्चे का देखा जाए, बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं पहले हरप्रीत जी। खर्चों का देखा जाए तो दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड खर्चे एक्सपेंसेस, एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जैसे मैनेज करना चाहिए फिक्स्ड, अगर आप नहीं कर सकते हैं आपके खर्चे कम, डेफिनेटली वेरिएबल खर्चे आपको कम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए इज सेविंग्स, है ना। आपके पास क्या सेविंग्स है। तो हाई इंटरेस्ट जो कर्जा बोलते हैं वो जैसे क्रेडिट कार्ड डेट हो गया, अगर आपका एनीथिंग 20% 25% कोई कर्जा है तो आप वो पहले फोकस करिए, स्लो डाउन वो पे ऑफ करिए, पर ऑल्सो साइड में आप सेविंग्स भी करते जाइए। आज की डेट में मेरे से लोग पूछते हैं टॉप एसेट, हमारा नंबर 1 एसेट क्या हो सकता है, एंड लोग जवाब देते हैं कि हमारा घर है, हमारी लैंड है, टॉप एसेट है। पर वो जो भूल जाते हैं कि ਬਟ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਿਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨੀਰਾ ਵੋਰਾ। ਨੀਰਾ ਵੋਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਰਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। थैंक यू हरप्रीत जी। सत श्री अकाल सबनो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ अर्ਲੀ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ? हरप्रीत जी, दैट्स डेफिनेटली अर्ली साइंस। अभी तो रिसेशन आ रहा है, आने वाला है, ये हम डिबेट नहीं कर सकते कि होगा कि नहीं होगा। ये साइंस जो है ये पॉइंट आउट डेफिनेटली कर रहे हैं कि होगा रिसेशन। सो इकोनॉमिक डाउनटर्न चल। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੌਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਈਵਨ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਉਨੇ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ प्रिपरेशन की जावे? तो खर्चे का देखा जाए, बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं पहले हरप्रीत जी। खर्चों का देखा जाए तो दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड खर्चे एक्सपेंसेस, एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जैसे मैनेज करना चाहिए फिक्स्ड, अगर आप नहीं कर सकते हैं आपके खर्चे कम, डेफिनेटली वेरिएबल खर्चे आपको कम करने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है, आपकी इनकम से होती है। या तो आप इनकम बढ़ाओ या आप एक्सपेंसेस घटाओ, है ना। सिंपल ये प्लान होता है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आपको एक्सपेंसेस घटाने हैं, स्पेशली जो लॉन्गर, जो ज़्यादा आपके हिडन एक्सपेंसेस जो होते हैं, आजकल हमको पता भी नहीं चलते बिजनेसेस में कैसे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। ये बिजनेसेस को देखना है, अपना जानकारी लेनी है। बट जो द गुड थिंग इज़ कि रिसेशन जो होता है वो टेम्पररी होता है हमेशा, कभी 6 to 18 मंथ्स लास्ट करता है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक अपटर्न। सो द गुड थिंग इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग एट द एंड ऑफ द क्लाउड। ये हमने कैसे नेविगेट करना है 6 से 18 मंथ जो हैं वो ये होता है कि डोंट मेक एनी पैनिक मूव्स। बिजनेसेस होते हैं कि
अभी हमने ये एकदम से फास्ट डिसीजन लेना है, एंड समटाइम्स वो जो होता है वो इट डजंट वर्क फॉर अस, इट वर्क्स अगेंस्ट अस। तो बिज़नेस को मैं ये सलाह जो फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से के पर्सपेक्टिव से दे सकती हूँ कि आप अपने सबसे पहले आप अपने एक्सपेंसेस देखिए, अपना बजट देखिए, कहाँ पे आप घटा सकते हैं, आपको ज़रूर आपको कम करना चाहिए कि आप कैसे सस्टेन बिज़नेस कर सकें ओवर द 6 टू 18 मंथ्स। दूसरा, डोंट पैनिक मूव्स। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर हम बोलते हैं कहीं पे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करे हुए हैं, एसेट्स में इन्वेस्ट करे हुए हैं, उनकी भी आप रिटर्न देखिए, बट डोंट मेक एनी सडन मूव्स कि ये अगर यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा तो हमने ये चेंज करके दोबारा कुछ और करना है। दैट शुड स्टिल बी वेल थॉट थ्रू प्लान, नॉट अ पैनिक मूव। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਸਰਟਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਕੁਆਰਟਰਸ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਫਾइनेंसेस आर कंसर्न? मैं थोड़ा आपको पहले लेके जाऊंगी कि रिसेशन तो होता है, बट हाउ आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, अभी कनाडा में, यूएस में पता है हाउ मनी जो यहाँ पे पिछले 20 साल से 30 साल से रह चुके हैं, प्रॉब्ली कुछ रिसेशन साइकिल्स ऑलरेडी वो नेविगेट कर चुके हैं, है ना। तो लर्निंग हमारे फाइनेंशियल के बेसिस में क्या होती है कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वी नो इट्स इनएविटेबल, ये होना है। तो पहले लेके जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी को भी किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए इज सेविंग्स, है ना। आपके पास क्या सेविंग्स है, कितना आपको वो लास्ट कर सकता है कि आप वो सर्वाइव करें डाउन टर्म। पीपल उन लोगों को लगता है कि हमारे पास क्विक सोल्यूशन आ जाना चाहिए कि रिसेशन हो गया, कोई हमें क्विकली सोल्यूशन बता दे कि हम क्या करें, है ना। अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्लानिंग। तो सबसे मैं किसी से भी बैठ के बात करती हूँ, चाहे मैं बिजनेस ओनर से बात कर रही हूँ, चाहे मैं इंडिविजुअल से बात कर रही हूँ, चाहे मैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से बात कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कैसे करी है। अगर आपके इमरजेंसी फंड्स नहीं है, अगर आपने कम से कम 3 to 6 मंथ्स आपकी मंथली इनकम सेव करके नहीं रखी है, तो डजेंट मैटर रिसेशन होता है या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं, वो आपको फाइनेंशियली आपको डाउन टर्न में लेके जाएंगे। तो any kind of emergency, and hopefully those emergency savings, what they will do is, while आप recession में हैं, अगर आपको जॉब अगर आपकी चली भी गई किसी भी तरीके से कम आपके 3 to 6 months है जो आप नेविगेट कर पा रहे हो while you also looking for the job। अगर इमरजेंसी फंड्स आपके नहीं हैं तो देन वो डबल प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंपाउंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है कि जॉब भी नहीं है और इमरजेंसी एक्सपेंसेस है, योर household expenses you're not able to pay for। So recession, while yes, so individuals ko it's all the best way we do is we plan, we have a monthly savings budget that we are saving and be consistent with that, and वो हम यूज कर रहे हैं, वो हम कहीं पे हमारा वो पैसा ग्रो हो रहा है, कहाँ पे ग्रो हो रहा है ये को बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दे के नीचे रखा हुआ है तो वो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है ना, और तिजोरी में रखा हुआ है तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा। तो वो हम सिखाते हैं डिपेंडिंग कि आप कितना ग्रो करना चाहते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट की बात ये है कि हमको वी आर बेस्ट प्रिपेयर्ड। हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स? Well, that's very important point that you have touched. 3 to 6 months of savings you should have, but unfortunately ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸੇਵਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ, so during this kind of uncertainty, or when the clouds of recession are hanging over your head, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈम्स ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल, कर्जा पे ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर किस तरीके का कर्जा, ये क्वेश्चन पहले देखना है। अगर हाई इंटरेस्ट कर्जा है तो ज़रूर वो आपको पहले फोकस करना है, पर ऑल्सो सेविंग साइड में करनी है।
तो ये नहीं कि सब पैसे हमने कर्जे चुकाने में लगा देना है, पर कुछ सेविंग्स भी करनी है। तो क्वेश्चन होता है कि अगर आपका कर्जा, अगर जैसे मॉर्गेज है, तो मॉर्गेज तो सबसे बड़ा कर्जा है और वो 30 साल तक रहेगा, है ना? अगर हम ये बोलते हैं कि पहले सब कर्जा ही चुकाना है, तो हम सेविंग्स तो थोड़ी बहुत 30-35 साल तक तो कर ही नहीं पाएंगे, अगर इस तरीके से सोचा जाए तो, है ना? तो हाई इंटरेस्ट जो कर्जा बोलते हैं वो जैसे क्रेडिट कार्ड डेट हो गया, अगर आपका एनीथिंग 20% 25% कोई कर्जा है, तो आप वो पहले फोकस करिए, स्लो डाउन वो पे ऑफ करिए, पर ऑल्सो साइड में आप सेविंग्स भी करते जाइए। तो ये जो हम सिखाते हैं हरप्रीत जी, ये एक्चुअली हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग सिखाते हैं। एंड आई एम गोना टेकिंग दिस बैक टू सेविंग्स, कि लोग को बोलते हैं कि लोग सोचते हैं हमें सेविंग्स करनी है, हमें पता नहीं हमें कितनी करनी है, हमें पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे इसका क्या कर सकते हैं, अगर छोटी $2 ही सेव कर पाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, वो खर्च करके लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, राइट? पर जो सिखाया जाता है कि $2 भी अगर आप रोज़ सेव कर पा रहे हो या महीने के सेव कर पा रहे हो, वो ऐड अप होके, अगर आप कंसिस्टेंट, तो वो ऐड होके बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग व्हाइल यू आल्सो फोकसिंग ऑन पेइंग ऑफ द डेट, द हाई इंटरेस्ट। ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਜੌਬ ਲੌਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 7.1% ਹੈ, ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮੰਗਸ ਦ ਯੂਥ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੇਕਰ ਜੌਬ ਲੌਸਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? देखिए हरप्रीत जी, जॉब लॉसेस बढ़ रही हैं, कुछ सेक्टर्स में बढ़ रही हैं, कुछ सेक्टर्स में एक्चुअली जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे कम्युनिटी में क्या एक थिंग है कि हमारा फोकस है एनीथिंग जॉब जो है रियल एस्टेट रिलेटेड, एंड विच इज़ गुड। हिस्टोरिकली रियल एस्टेट जो है बीसी में सबसे बड़ा इनकम सोर्स रहा है, सबसे बड़ा इनकम प्रोवाइडर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। आप बिल्डर्स को देख लीजिए, आप असेसर्स को देख लीजिए, रियल एस्टेट एजेंट्स, मॉर्गेज प्रोवाइडर्स। बट रियलिटी क्या हो रही है कि वो अब सेक्टर इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, दिस गोइंग थ्रू मैसिव लॉसेस। सो पीपल शुड लुक एट एम्प्लॉयर्स और समथिंग, मे बी देयर इज़ अ वे कि आप अपनी एडिशनल इनकम किसी तरीके से क्रिएट करिए। इनकम आज की डेट में सब पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जिनका पे चेक $1,000 मंथ का है वो भी पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं, जिनका $10,000 का पे चेक है वो भी पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल होता है वो आपका मैच करता है आपका पे चेक का। ठीक है, आपका $10,000 का पे चेक है तो आपके एक्सपेंसेस भी $10,000 के हैं। और फैमिलीज़ को ये रियलाइज़ करना है कि वो उन्होंने इंक्रीज़ जो एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज़ करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए। और इनकम प्रोटेक्ट, हाँ, देयर आर टूल्स टू इनकम प्रोटेक्ट। आप आज की डेट में मेरे से लोग पूछते हैं टॉप एसेट, हमारा नंबर 1 एसेट क्या हो सकता है? एंड लोग जवाब देते हैं कि हमारा घर है, हमारी लैंड है, ये हमारी टॉप एसेट है। पर वो जो भूल जाते हैं कि इनकम जो है वो हमारी टॉप एसेट है। अगर इनकम नहीं होगी हमारी, तो हम वो एसेट्स को कैसे पे कर पाएंगे? ठीक है, तो इनकम को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए? फाइनेंशियल टूल्स होते हैं कि आप इंश्योरेंसेस ले सकते हो बिजनेस वाइज, और इंडिविजुअल्स भी, आप जिस कुछ हो जाए, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ये कुछ एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स खुद ले सकते हैं, एंड दीज आर सप्लीमेंटल। बट कम्स डाउन टू अगेन कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, विलिंगली आपके पास वो फंड्स होने चाहिए जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रियलिस्टिकली मैं लोगों के साथ बैठती हूँ और मैं जब उनके एक्सपेंसेस देखती हूँ, तो मुझे ऑफ कोर्स क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि हमारे पास सेविंग्स के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं, तो हम कैसे सेव करें, है ना? मैं ये याद दिलाऊंगी लोगों को कि सेविंग्स जो होती है, वॉरेन बफेट भी जो कहता है, उसने वो कहता है कि सेविंग्स पहले होती है, खर्चे बाद में होते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि हमारे पास कुछ एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचेगा तब हम सेव करेंगे, तो वो कभी किसी की भी लाइफ में, वो मिलियनेयर्स भी ऐसे नहीं सोचते, जो वेल्थी होते वो भी नहीं सोचते, वो पहले पैसा बचाते हैं, फिर वो बाद में एक्सपेंसेस करते हैं कि अच्छा अब हमारे पास इतने बच गए, अब हम एक्सपेंसेस इसमें इनकर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो इसके लिए पैराडाइम शिफ्ट, एक चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन से ही हमें नहीं सिखाया जाता कि हमने कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना, और यहाँ पे प्रोफेशनल्स आप जैसे जो हैं वो गाइड कर सकते हैं। आपने जो बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पैसा अगर है और वो गद्दे के नीचे रखा है या तिजोरी में रखा है या इवन बैंक में रखा है, तो कितना को वो बढ़ जाएगा। स्पेशली यहाँ पे तो वो इंडिया जैसे एफडी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है।
ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਫਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GIC ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? फॉर पहले मैं ये बोलूँगी कि नो पैनिक मूव्स आई विल सजेस्ट, रिसेशन आता है, रिसेशन भी चला जाएगा, तो कोई पैनिक मूव्स करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो होपफुली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको समझाया है, आपने कुछ सोच के करा है। इंडिविजुअल प्लान्स बनते हैं हरप्रीत जी, कि आपकी, जैसे आपके साथ मैं अभी बैठी हूँ कि हरप्रीत जी आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है ना, आपने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कब ये यूज़ होगा, आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, कितना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये बैठ के पूरा इंडिविजुअलाइज प्लान बनता है। एक प्लान सबके ऊपर लागू नहीं होता है ना, ये पर्सनलाइज प्लान होता है। तो इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी GIC में पैसा लगाया हुआ है, वो मैं ये बोलूँगी कि पैनिक मूव्स करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लगाया हुआ है वहाँ पे रखे रहना चाहिए। हाँ, अगर स्मॉल ट्वीक्स तो सोच समझ के करिए। मार्केट हमेशा रिकवर करेगी, मार्केट गारंटीड रिकवर करेगी। 1900 से स्टॉक मार्केट चालू है, जितने ईयर्स उन्होंने मार्केट ने बेटर किया है, इट इज 3 times मोर देन द मार्केट हैज डन वर्स, ठीक है। टाइमिंग द मार्केट विल नेवर वर्क कि अच्छा मार्केट डाउन है तो मैं पैसा निकाल के कहीं और लगा लूं। टाइमिंग द मार्केट नेवर वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। Time in the, you have to stay consistent, stay invested, and stay there. No panic moves. ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਊਨਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ EMPLOYED ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਕਿ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਵਿਲ ਪਾਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਫॉर ਐਵਰ, ਬਟ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਿਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ फ़ायदा आम जनता ले सकती हैगी? बिल्कुल। गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि टाइम्स आर हार्ड, तो उन्होंने कुछ और बेनिफिट्स, फैमिली बेनिफिट्स वगैरह कुछ ऐड करे हैं। तो आई इनकरेज फैमिलीज़ की कुछ हैं ऐसे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो वो एक्सेस कर सकते हैं, तो आई इनकरेज देम। बिजनेसेस आल्सो हैव टैक्स सेविंग CDAs account, which or dividend account that is available to incorporations, and they can go, उसमें वो देख सकते हैं, अपने अकाउंटेंट के साथ बैठ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं अगर उनको कुछ पूछना है, आगे पूछना है। तो देयर इज़ अ वे कि हम गाइड करते हैं। ये रिसेशन आपके पहले देखा जाएगा कि आपके पास क्या है, किस तरीके के एसेट्स हैं, मे बी वो एसेट्स लेवरेज कर सकते हैं कि अगर आपके पास इमीडिएट फंड्स नहीं है, इमरजेंसी फंड्स नहीं है बिजनेसेस में, क्या कुछ वो एसेट्स के अगेंस्ट हम लोन दे सकते हैं, क्या हम वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन हेल्प बिजनेसेस नेविगेट। बट जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्लान जो है इंडिविजुअलाइज जनरल प्लान नहीं का किसी के लिए वर्क करता, पर्सनलाइज ईच इंडिविजुअल, ईच बिजनेस ओनर के साथ चाहिए। बट अगेन ये बिल्कुल स्केरी टाइम्स हैं, सब वरिड हैं, होना भी चाहिए। बट जो मैं बोलना चाहती हूँ दर्शकों को कि ये हो चुका है, ये हम रिकवर कर चुके हैं पहले, ये नई बात नहीं। इम्पॉर्टेंट है मूव, स्टे कंसिस्टेंट, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कंसल्ट ए एडवाइजर अगर आपके पास है, अगर आप किसी को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। पर प्लीज डोंट टेक एनी इमीडिएट एक्शंस जस्ट बिकॉज की रिसेशन आ रहा है। Right. Again, that's again a very important point because ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਅਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਸੈਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? द फर्स्ट मिस्टेक जो करते हैं लोग, वो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की सलाह लेके करते हैं कि आपने ये किया, आपके लिए क्या काम कर रहा है, अच्छा हम भी यही कर लेते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जस्ट बिकॉज कि कुछ सोल्यूशन दूसरों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए काम करें, आपके फैमिली के लिए काम करें, तो आपको जस्ट डजंट मीन कि आपके लिए भी वो काम करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली डिफरेंट है, आपके गोल्स डिफरेंट है, आपका बिजनेस जो आपका इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो वन प्लान डजंट फिट ऑल। तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि प्लीज डोंट लिसन टू 100% लिसन टू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एडवाइस एंड टेक अ डिसीजन। दूसरा, अगर
हस्बैंड करते हैं, वो मेरा वो स्टेटमेंट देखते हैं जब रिसेशन में आ गई। मेरे को भी काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं पिछले 2 दिनों से कि वो अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं और उनके इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम हो गए हैं, एंड वो डर रहे हैं कि अब हमारा लॉस हो गया और ये हम विथड्रॉ करना चाहते हैं ताकि आगे फर्दर लॉस ना हो। तो जो मैं उनको कोशिश करती हूँ समझाने की कि अभी जो पैनिक विड्रॉल जो होता है वो वर्स होता है, कि ये स्टैट्स है पूरे कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हो, चाहे मार्केट कंटिन्यूसली डाउन भी जा रही है, दैट मीन्स कि आपने यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, यू हैव विड्रॉन योर फंड्स इन द मार्केट, यू आर नॉट, वो आप टाइम नहीं दे रहे आगे मार्केट को कैचअप करने का, वो फंड्स आपके रेज होने का। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग पैसा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डाल देते हैं, बिजनेसेस थोड़ा श्रिंक कर रहे हैं, बट देन जो बिजनेसेस ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो एक्सपेंशन जो होती है बिजनेस की, वो तभी होती है जब मार्केट डाउन हो रही होती है, बिकॉज आपकी बाइंग पावर इंक्रीज हो गई है। तो जो स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं जब डाउनटर्न रिसेशन होता है, और जब मार्केट अच्छी हो रही होती है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हाई होती है, दैट्स व्हेन दे प्रिपेयर टू curtail their expenses because they know कि रिसेशन आने वाला है। सो अगेन दिस माइंडसेट, जैसे आपने पहले भी बोला, ये थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए, ये माइंडसेट चाहिए हमको ग्रो करने के लिए, थोड़ी रेजिलियंस चाहिए हमें कि हम एक चीज़ पे टिके रहें, पैनिक मूव्स ना करें। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ, ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? देखिए, मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, बट मैं अपनी एंग्जाइटी कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं आपको बता सकती हूँ। ये तो एंग्जाइटी मैनेज का वो मे बी देयर इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, बट अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई कीप कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कंसिस्टेंसी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट। जो भी आपका प्लान है, जो भी आप फॉलो थ्रू कर रहे हो, डोंट गेट स्केयर, फियर मॉन्गरिंग हैपन्स एवरीवेयर। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आप कहीं पे भी देखोगे, ओ ट्रंप ने आज ये कर दिया, ट्रंप ने आज वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो अपने डिसीजंस जो हैं उसके बेसिस पे फियर मॉन्गरिंग पे आप ना करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली आर वेरी ट्रस्टवर्दी, लॉट ऑफ टाइम्स वी, ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि हम जिनको ट्रस्ट करते हैं उनकी हम सलाह भी सोचते हैं कि अच्छी सलाह है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक होती है। पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को तो ये नहीं बोलते मेरे भाई ने मुझे बोला है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे कुछ और है तो मैं तो खाऊंगा। तो प्रोफेशनल ये मैं बताऊंगी कि फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना? उस पर आपकी फिजिकल वेलनेस डिपेंड करती है, उस पर आपकी मेंटल वेलनेस डिपेंड करती है। तो जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं तो हम उन प्रोफेशनल्स को क्यों नहीं कंसल्ट करते? Don't make the decisions on our friends and family, but be consistent, don't get scared, take an advice from from a professional, from an experienced professional, see कुछ चेंजेस शायद ज़रूर हो सकते हैं आपके प्लान में, कि आपके कंपनी में, आपके कंपनी स्टेटमेंट्स में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपने सेविंग्स अगर बैंक में करी हुई है, तो अगर बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कहीं और आपको इंटरेस्ट वो मिल सकता है। ये बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है फाइनेंशियल प्लानिंग में, पर हमारी कम्युनिटी या तो जानती नहीं है उसके बारे में, या जानना चाहती नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा जो सोर्स है वो रियल एस्टेट पे ही हम टिके हुए हैं, कि रियल एस्टेट ही हमारा इनकम प्लान है, रियल एस्टेट ही हमारी एम्प्लॉयमेंट प्लान है, रियल एस्टेट ही हमारी रिटायरमेंट प्लान है ना? तो वो ठीक है, हम कर सकते हैं, पर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, कहाँ पे भी आप $2 भी बचा रहे हो, तो वो आप एक पॉट में मत डालो, आप डाइवर्सिफाई करो, जिससे आपका रिस्क जो होता है वो मिटिगेट हो जाता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਆਲ ਯੋਰ ਐਗਸ ਇਨ ਵਨ ਬਾਸਕਟ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ ਆਲਸੋ ਔਨ ਯੋਰ ਪਰਚੇਜ਼ਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬੌਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਲਸੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਰਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵਨ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਜੀ? आपने सब समराइज बहुत अच्छी तरीके से करा हरप्रीत जी, बट मैं यही बोलूँगी कि फाइनेंशियल कीप कमिंग बैक कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है। हमारे रिलेशनशिप्स अराउंड अस, आर पीपल अराउंड अस, फाइनेंशियल वेलबींग और मेंटल वेलबींग सब इस पर डिपेंड करता है। तो भी हमें सीरियसली लेना है ये, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने कुछ नहीं करा और अब रिसेशन आ गया या अब प्रॉब्लम्स आ गई। ये वी ओ इट टू आवर सेल्व्स, आवर फैमिली टू बी प्रिपेयर्ड। एंड वो प्रिपरेशन हम अपने अब इंडिविजुअली एज अ बिजनेस एज इंडिविजुअल्स कैसे कर सकते हैं, ये हमें पहले सोचना है। नॉट कि जब रिसेशन आ जाए तो ये दिस इज़ अ गुड टाइम जब लोग सोच रहे हैं इस मामले में कि फाइनेंशियल अब हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना रिटायरमेंट। सम पीपल थिंक कि ओ हमारा रिटायरमेंट 30 ईयर्स अवे है, अभी हमने सोचने की ज़रूरत नहीं है सोचने की। वो रिटायरमेंट जैसे ए लाइफ पैसेस बाय, लाइफ डजंट वेट। ਟਾਈਮ ਫਲਾਈਜ਼ ਸੋ ਫਾਸਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਰਿਗਰੈਟਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਨੀਰਾ ਵੋਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6046037555 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com। Thank you very much for sparing your valuable time and being a part of this program। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Have a wonderful day।